ایک مومن کی پہچان کیا ہے اور ہم اور آپ کیسا مومن ہے؟ دنیا میں ہم اور آپ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آئے دن مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بشارت دے رہے ہیں، مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مومنوں گھبرانا نہیں ہے، مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ مومنوں تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو جاؤ، تم پریشان نہ ہو جانا، غم نہ ہو جانا، غمگین نظر نہ آنا۔ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی بادشاہ بنائے جاؤ گے، تم ہی دیش کا بادشاہ بنو گے، لیکن ہاں ایک شرط ہے، ان کو تم مومنین، اگر تم پکے سچے مومن ہو جاؤ، تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر سچائی آ جائے، تمہارے اندر ایک دوسرے پر بھلائی کرنے کا، تمہارے اندر ایک دوسرے پر بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ان کو تم مومنین، اگر تم اللہ سے دل لگا لو، اگر تم پکے سچے مومن بن جاؤ، تو دنیا میں جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہے، تمہیں لوگ نیچا دکھا رہے ہیں، ایک دن تم ضرور سر بلند ہو جاؤ گے، ایک دن تم ضرور دیش کا بادشاہ بن جاؤ گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، لیکن شرط ہے کہ مومن ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے فیصلہ مقرر کر رہا ہے کہ لوگو تم آپس میں عدل کرو، تم انصاف کرو اور ایک دوسرے پر احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور ہاں سنو، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور تم بے-حیائی کے کاموں سے روک جاؤ، بے-حیائی کے کام نہ کرو، تم برے کام نہ کرو، تم غلط کام نہ کرو، تم شراب نہ پیو، تم جوا نہ کھیلو۔ ہاں اگر تم ایسا کر رہے ہو تو نصیحت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اس چیز سے نصیحت حاصل کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین مومنوں کو حکم دے رہا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ لوگو تم آپس میں عدل کرو، تم آپس میں انصاف کرو۔ اگر ہم اور آپ انصاف کر رہے ہیں تو پھر انسانیت برقرار رہے گی۔ اگر انصاف ختم ہو جائے، انصاف اٹھ جائے، تو پھر یہ انسانیت ختم ہو جائے گی۔ اور دیش میں جو بھائی چارہ ختم ہو رہا ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان عدل نہیں ہے، ہمارے درمیان انصاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے آئے۔ آپ نے پوری زندگی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے رہے، آپ لوگوں کے درمیان صلح کرتے رہے، آپ نے لوگوں کو کبھی لڑانے کی بات نہیں کی، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اتحاد کا ثبوت دیا کہ لوگوں تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے اور کہتا ہے لوگوں تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے پوری دنیا کے لوگو، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں ہوا ہے، ہمارا
बाप आदम है, जिसको हिंदू धर्म की किताबों में भी कहा गया है। आदम को मनु कहा गया है और हव्वा को शत्रुपा कहा गया है। ईसाइयों की किताबों में भी ये बात आज भी लिखी हुई है। ईसाई भाई आज भी ये कहते हैं, जिसको आदम कहा गया, जिसको मनु कहा गया, जिसको हव्वा कहा गया, जिसको शत्रुपा कहा गया, उसी को ईसाई किताबों में मानव जोड़ी कहा गया। यानी मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के लोग आपस में भाई भाई है, सबकी माँ एक है, सबका बाप एक है। आपने इंसाफ किया, ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह कहता है तुम आपस में अदल करो, आपस में एहसान करो, एक दूसरे के साथ भलाई करो, एक दूसरे के साथ एहसान करो, भलाई करो, इंसाफ करो। मेरे भाइयों, आज देख लीजिए, दुनिया से इंसाफ खत्म हो गया। दुनिया से इंसाफ जब खत्म हो गया, इंसानियत भी खत्म हो रही है, भाईचारा भी खत्म हो रहा है। और भाईचारा खत्म हुआ तो हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई, भाईचारा खत्म हुआ तो हमारे मदरसे पे ताले लग गए, भाईचारा खत्म हुआ तो इंसानियत का मर्डर हो गया, भाईचारा खत्म हुआ तो इंसान के खून से होलियां खेले जाने लगे। आज हमारे देश में दूध महंगा हो रहा है और खून सस्ता हो रहा है। मेरे भाइयों, इसकी वजह यही है कि इंसानियत खत्म हो रही है। और इंसानियत इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि मुल्क से इंसाफ खत्म होता चला जाता है मेरे भाइयों। और आज हमें और आपको ये खबर सुनने को मिलती है कि हमसे हमारी मस्जिद छीन ली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिर के साथ भी एहसान करते थे, एक काफिर के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। किसी को ये नहीं देखते थे कौन ईसाई है, किसी को ये नहीं देखते थे कि कौन काफिर है। मेरे प्यारे साथियों, आओ मैं आपको उस वाक़े की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ जिसको सनाउल्लाह अमृतसरी ने अंजाम दिया है। एक मर्तबा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे। इनको अमृतसर से कोलकाता जाना था, ट्रेन पर बैठे थे और एक पंडित भी बैठे थे और चालू डिब्बा में उस वक्त सफर किया करते थे लोग। मेरे भाइयों, पंडित जी उसी मौलाना के पास बैठे हुए थे। इतने में जैसे वो अपनी सीट से खड़ा हुआ, अचानक लोहे से उसका सर टकराया और खून निकलने लगा। इतना खून निकला, वो कहते हैं कि खून का फव्वारा निकलने लगा, जैसे पानी निकलता है, पानी का फव्वारा, खून का फव्वारा निकलने लगा। सब हिंदू आपस में कहने लगे हाय राम राम, सब कहने लगे राम 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 और वहां से हटने लगे। लेकिन मौलाना को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत अपनाने का कैसा तरीका दिया। सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं, सफेद पगड़ी बांधे हुए हैं। उन्होंने जल्दी से अमामा उतारा, उन्होंने जल्दी से पगड़ी उतारे और उस सफेद पगड़ी को दो टुकड़ा कर दिया, उसको दो भागों में बांट दिया, दो तरह से तकसीम कर दिया। एक टुकड़ा उससे खून साफ किया और एक टुकड़ा उसके सर पे लगा दिए। जहां वो सर फट गया था, जहां से खून निकल रहा था, वहां पे एक पगड़ी का टुकड़ा लगा दिया और उसकी रान पे पंडित जी को लिटा दिए। पंडित जी को जब होश आया तो देखा कि एक मौलाना है, एक मौलवी है। पंडित जी ने देखा कि एक मौलवी है तो फौरन शुक्रिया अदा किया, मौलाना का शुक्रिया अदा किया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहते हैं मेरे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है कि इंसानियत को फैलाओ, दुनिया में इंसानियत को बरकरार रखो। हम तो तुम्हारे पड़ोसी होने के नाते तुम्हारा हक अदा किया है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। अगर इस्लाम को कोई दहशतगर्द बता रहा है, मुसलमानों को कोई दहशतगर्द बता रहा है, उनसे आप कहिए कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। अगर एक हिंदू दहशतगर्दी करे, वो हिंदू नहीं हो सकता है, वो सनातनी नहीं हो सकता है। कोई ईसाई अगर दहशतगर्दी का काम अंजाम दे, वो ईसाई दहशतगर्द नहीं हो सकता है उसका मजहब। मेरे भाइयों, वो इंसान हो सकता है, वो इंसान
जो ये दहशत गर्दी का काम अंजाम दे उसको कहा जाएगा, लेकिन दहशत गर्दी का कोई मजहब नहीं है। मुसलमान दहशतगर्द सब कोई नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, इस्लाम दहशतगर्द नहीं है, बल्कि कोई कोई जो काम अंजाम देता है उसको कहा जाएगा, किसी मजहब को जोड़ा नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर के साथ किस तरह सलूक किया। अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए, जिनका नाम सुमामा बिन उसाल है। अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए, अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए। कौन? काफिर। यमामा का गवर्नर सुमामा बिन उसाल अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए, मारने के इरादे से आए, भेष बदल कर, शक्ल बदल कर कत्ल करने के इरादे से आए कि अल्लाह के नबी को मार दिया जाए, अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया जाए। सहाबा ने पता लगा लिया ये अल्लाह के नबी को मारने आए हैं, ये अल्लाह के नबी को कत्ल करने आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस इंसान को पकड़ लिया गया, उस मुजरिम को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उसको मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। नबी अकरम को खबर हुई कि आपको कत्ल करने के इरादे से आए सुमामा बिन उसाल पकड़ा गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। अल्लाह के नबी ने कहा उसको बांध कर रखो। आप उनके पास आए और कहा सुमामा मा शानु का या सुमामा, सुमामा क्या हाल है, सुमामा क्या हाल है, क्यों आए हो? कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कत्ल करने के इरादे से आए थे। हाँ, मेरी सजा ये बनती कि आप भी मुझे कत्ल कर दे, लेकिन हाँ आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए। इन तक़तुल ज़ात मिन व इन तुनइम अला शाकिर। ऐ मोहम्मद सुना हो आप बड़े रहम वाले हैं, आप बड़ा मेहरबान हैं, अगर कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दीजिए, छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए। अल्लाह के नबी ने उस दिन सुमामा को छोड़ दिया। दूसरे दिन आए, सुमामा क्या किया जाए? सुमामा का वही जवाब, कत्ल करना चाहे कत्ल कर दीजिए, छोड़ना चाहे छोड़ दीजिए, माफ़ करना चाहे माफ़ कर दीजिए। आपने दूसरे दिन सुमामा को छोड़ दिया, आपने तीसरे दिन भी सुमामा को छोड़ दिया, तीसरे दिन भी सुमामा को छोड़ दिया। एक ऑप्शन दिया, सुमामा ये बताओ अगर तुम मेरे शक्ल की तरफ देख लेते हो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। सुमामा कहता है ऐ मोहम्मद मैंने पूरी दुनिया के बहुत से मुल्क का सफ़र किया है, बहुत से बादशाहों का चेहरा देखा है। मा राइतु वजहन अक़बह मिन वजहिक, सबसे गंदा चेहरा अगर किसी का है तो तेरा है, सबसे गंदी शक्ल की अगर कोई है तो आप है। नहीं देखता हूँ, मर जाना गवारा है, मर जाना कत्ल हो जाना गवारा है, लेकिन तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं। आपने फरमाया सुमामा एक काम करो, अगर मेरे शक्ल की तरफ नहीं देखते हो मत देखो, मेरे इस मदीने की तरफ देख लो, मेरे इस बस्ती की तरफ देख लो, यहाँ कैसे अमन बरस रहा है, यहाँ कैसे शांति बरस रही है। सुमामा कहता है मा राइतु बलदन अक़बह मिन बलदिक। आए मोहम्मद हमने बहुत से शहर देखे हैं, हमने बहुत सी बस्तियाँ देखी है, सबसे गंदी बस्ती अगर कोई है तो आपकी है, सबसे गंदा शहर अगर कोई है तो आपका है। नहीं देखता हूँ, न तुझे देखता न तेरे शहर को देखता हूं, नहीं देखता हूं, कत्ल हो जाना गवारा है, लेकिन तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं। आपने फिर भी सुमामा को छोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की खूबसूरती के बारे में कुरान कहता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। अल्लाह कहता है हमने मोहम्मद को दुनिया में रोशन चिराग बनाकर भेजा है, चमकता दमकता सूरज बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी का चेहरा चमकता दमकता है, सूरज की तरह रोशन है, और उस चेहरे को सुमामा गंदा चेहरा कह रहा है, उस चेहरे को सुमामा गंदा कह रहा है। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी अल्लाह के नबी ने सुमामा को छोड़ दिया कि सुमामा जाओ, मैंने तुमको आज़ाद कर दिया। एक बड़ा दुश्मन है जो नबी अकरम को कत्ल करने के इरादे से आए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी उसको छोड़ रहे हैं।
میرے پیارے ساتھیوں، اگر تھوڑی سی بات ان کو مل جائے ہماری طرف سے تو ان کو لمبی بنا کر، ان کو پہاڑ جیسے بنا کر دکھائیں گے میڈیا والے، اور اس حق بولنے والے حق پرست کو جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صورتحال یہ ہے، اور یہاں ثمامہ بن اسال اتنا بڑا خطرناک مجرم جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ گندا چہرہ ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیرہ کہا، جس چہرے کو ان کی بیوی حضرت عائشہ یہ کہا کرتی ہو، لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے۔ ہمارا سورج تو ہے وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج تو ہے جو آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، میرا سورج تو آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان کا سورج تو وہ ہے جو دن میں چمکتا ہے، فجر کے بعد چمکتا ہے۔ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، اور میرا سورج تو ہے جو رات کے اندھیری میں عشاء کے وقت، عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ یہ کون کہتی ہے؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، لوگوں لنا شمس وللآفاق شمس، آسمانوں کا بھی ایک سورج ہے، ہمارا بھی ایک سورج ہے، ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارا سورج تو رات کے وقت چمکتا ہے اور آسمانوں کا سورج دن میں چمکتا ہے، فجر کے بعد چمکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیوی اگر شوہر کی تعریف کر دے تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ بیوی اگر شوہر کی تعریف کر دے تو بہت بڑی بات ہو گئی، کیونکہ 95% بیوی ایسی ہوتی ہے جو اپنے شوہروں کی تعریف نہیں کرتے۔ ہر جگہ میں بیان کرتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہے وہ چٹکلا، وہ لطیفہ، میں آپ کو بھی بول کے جاتا ہوں۔ ایک دن ایک بیوی اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے کہ آج میں نے آسمانوں میں دیکھا ہے کہ پیر صاحب مصلی بچھا ہوا ہے اور اس پہ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، گویا کہ وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور آسمانوں کا سیر کر رہے ہیں۔ شوہر نے بیوی سے کہا، کم بخت، تم جانتی ہو وہ کون تھا؟ تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ بیوی بولی، وہ کون تھا؟ کہ وہ میں ہی تو تھا جو مصلی بچھے ہوئے اس پہ بیٹھا تھا اور آسمانوں کا سفر کر رہا تھا۔ بیوی کہا، اگر تم ہی تھے تو کچھ تو عیب نکلنا ہوگا۔ بیوی نے کہا، شوہر اچھا اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اتر رہا تھا، ٹیڑھے ٹیڑھے تو تیر رہا تھا، ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بیوی ہے جو شوہر کی جلدی تعریف کرے گی ہی نہیں۔ حضرت عائشہ اپنے نبی، اپنے شوہر کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے نبی تو وہ ہے جو آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ میرے نبی رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ چمکتا ہے اور آسمانوں کا سورج فجر کے بعد دن میں چمکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ثمامہ بن اسال نے کہا، اے نبی، اے محمد، آپ کا چہرہ سب سے گندا چہرہ ہے، آپ کی بستی سب سے گندی بستی ہے، پھر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ جب اللہ کے رسول نے دشمن کو معاف کر دیا، کافر کو معاف کر دیا، ثمامہ بن اسال تھوڑی دور آگے گیا، تھوڑی دیر کے لیے آگے گیا اور پھر وہاں سے واپس آ گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے آپ نے اپنے اخلاق کے رسی میں جکڑ لیا ہے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ اس طرح ہے غریب، جو بیوہ، جو عورت جن کے شوہر ہے، آپ نے اس کو جدا کر دیا، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جدا کر دیا، یعنی بیٹا اسلام لے کے آ گیا، باپ سے الگ ہو گئے، باپ اسلام لے کے آ گیا، بیٹے سے الگ ہو گئے، شوہر کو بیوی سے الگ کر دیا، بیوی کو شوہر سے الگ کر دیا، لیکن آپ تو واقعی بڑے مہربان ہیں، میں نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا اور آپ کو دھمکیاں دی، آپ کو گالیاں دی اور آپ کے چہرے کو گندا چہرہ کہا، لیکن باوجود آپ نے ٹارچر نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اسلام۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाने के लिए अपना अखलाक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। आपने तलवारों का इस्तेमाल नहीं किया है। जो कहता है कि इस्लाम तलवारों को नोक पे फैला है, उनसे कहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या बतला रहा है कि एक दुश्मनों के साथ भी कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसा बर्ताव किया जाता है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा उक़बा बिन नाफ़े। जब ये इस्लामी लश्कर लेकर चले और इस्लाम का नाम बुलंद करता चला गया, इस्लाम का पैगाम फैलाता चला गया, आगे बहुत बड़ा समंदर आया, आगे बहुत बड़ा दरिया आया, बहरे ज़ुल्मात। देखा कि आगे बहुत बड़ा समंदर है, तारीकी समंदर है। ये उक़बा बिन नाफ़े अपने लश्कर से कहता है, क्या देखते हो, अपने घोड़े आगे बढ़ाओ। उक़बा बिन नाफ़े अपने घोड़े को आगे दौड़ा देते हैं। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल अपने शेर में उसको नकल करता है, दस्तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हमने। मेरे भाइयों, उक़बा बिन नाफ़े ने एक तारीखी जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुखातब होते हुए कहा, आय अल्लाह, अगर मेरे रास्ते में समंदर हाइल ना होता, मेरी राह में समंदर हाइल ना होता, तो मैं पूरी दुनिया में तेरा नाम बुलंद करता चला जाता, पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाता चला जाता। नौजवानों, अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए, अपने अंदर बुद्धि सोच बूझ पैदा कीजिए और आगे बढ़िए एक अपनी नई ताकत और अपनी नई पहचान के साथ। इस्लाम का परचम ना झुका है ना झुकेगा, इसको जितना दबाया जाए और ही उतना ही उभरेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हम और आप आगे बढ़ें और जो हम पर इल्जामात लग रहे हैं उनका खुलकर मुकाबला करें। हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हम ही को दुनिया कहेगी कातिल, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मेरे भाइयों, मुसलमानों ने अपना खून से इस देश को सींचा है, मुसलमानों ने अपने खून से इस देश को आज़ाद किया है। ये मुसलमान कुएं खोदते फिरे हैं पानी के लिए, और आज इन्हीं मुसलमानों पे पानी हराम है। इसलिए नौजवान उठिए। अभी हाल ही में आपने देखा, संभल के अंदर हमारे 5 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश के संभल जिला में हमारे 5 लोग मारे गए। उन बच्चों की माँ का दर्द सुनिए, उन बच्चों की माँ की आह सुनिए। मेरे प्यारे साथियों, वो अपने काम से गए, कोई दुकान का सौदा लाने गए, कोई अपने काम से गए, न प्रोटेस्ट में शामिल, न विरोध में शामिल, न प्रदर्शन में शामिल। अगर कोई एहतिजाज कर भी रहे तो संविधान के मुताबिक कर रहे थे, दायरे के मुताबिक कर रहे थे। जो 5 लोग मारे गए, उन्होंने ना एहतिजाज में हिस्सा लिया, ना प्रोटेस्ट में शामिल थे, बावजूद उन पर गोलियां चली, और ये आम पब्लिक की गोलियां नहीं चली। अगर गोली चली भी तो पब्लिक की नहीं, पुलिस की चली है। जिस पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया है, जिस पुलिस को देश का मुहाफिज कहा गया है, एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव हो। अगर कहीं कोई आपस में लड़ जाए, बीच में सुलह करने के लिए आए, कहीं पे अगर दंगा हो उसको रोकने के लिए आए, कोई किसी पर बम गिरा रहा है, कोई किसी को तलवार से भून रहा है, गोलियों से भून रहा है, पिस्टल चला रहे हैं, उनको रोकने के काम पुलिस के हैं। लेकिन 5 लोग जो मारे गए पुलिस की गोली से मारे गए हैं। ऐसा किस लिए हुआ, आपको भी डिटेल के साथ बताता हूं। संभल के अंदर जो मस्जिद जिन पर पाबंदी लगी है, मेरे भाइयों, 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर की कि यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ये याचिका दायर हुई निचली अदालतों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर हुई। जिस दिन याचिका दायर हुई, संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है, अगर एक पक्ष याचिका दायर करें तो आप दूसरे पक्ष का सुने बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। एक पक्ष आज याचिका दायर किए, आप दूसरे पक्ष से पहले सुनिए क्या है नहीं है, इनकी असलियत सुने, सच्चाई सुनिए। अगर सर्वे की जरूरत पड़े आप सर्वे कीजिए, लेकिन दूसरे पक्ष को सुने बगैर आप कोई फैसला नहीं कर सकते। हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की, उसी दिन शाम होते होते सर्वे की टीम आ गई और मस्जिद की सर्वे कर दी। मस्जिद में सर्वे होने लगी,
पूछता है भारत, मैं नहीं कह रहा हूं, मुसलमान नहीं कह रहा है, कोई हक परस्त मिंबर नहीं कह रहा है, कोई नेता हमारी आवाज नहीं उठा रहा है, उसके लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये भारत पूछता है कि भारत के किसी भी कानून में, किसी भी संविधान में, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी धारा में ये बात नहीं है। चैलेंज के साथ कहा जा सकता है, हमारी आवाज वहां तक पहुंच सकती है। अगर एक पक्ष याचिका दायर करे आज, आप दूसरे पक्ष को जब तक ना सुन लीजिए, कोई आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं दे सकते हैं, सर्वे की टीम आपकी वहां नहीं पहुंच सकते हैं। मेरे भाइयों, एक दिन कर लिया गया जबरदस्ती सर्वे, दूसरे दिन जब आए मुस्लिम कमेटी ने, मस्जिद कमेटी ने इसको जानना चाहा, इसको समझना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि यहां सर्वे करने के लिए टीम आ गए, जबकि मुसलमानों से पूछा ही नहीं गया, मस्जिद कमेटी से परमिशन ली ही नहीं गई, तो फिर दूसरे दिन सर्वे टीम यहां क्यों आए हैं? थोड़ा एहतिजाज किया, दायरे में किया, उसी मौके पे पुलिस की गोली चल जाती है। मेरे भाइयों, हमें और आपको सोचने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों तुम एक दूसरे के साथ एहसान करो, एक दूसरे को भाई समझो। अल्लाह हुक्म देता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है लोगों तुम अदल करो, तुम इंसाफ करो, तुम अदल करो, तुम इंसाफ करो, और कहता है कि तुम एहसान करो, वईताइ ज़िल कुर्बा, और तुम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा से पेश आओ, अच्छे तरीके से पेश आओ, अच्छा बर्ताव करो। मेरे भाइयों, अदल व इंसाफ का पैमाना देखिए, अदल इंसाफ का पैमाना देखिए। आपने जात और बिरादरी के हिसाब से फैसला नहीं किया है। आपने फरमाया है, आपने सुना होगा, कबीला बनु मखजूम की एक औरत ने अल्लाह के नबी के ज़माने में चोरी कर ली, एक औरत ने चोरी कर ली। अल्लाह के नबी के पास ये फैसला, अल्लाह के नबी के पास ये मामला आया कि एक औरत ने चोरी कर ली है, एक औरत ने चोरी कर ली। किसकी औरत है? कुरैश की औरत है, चोरी कर ली। अल्लाह के नबी ने फैसला सुना दिया, अगर कोई चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाएगा, जिसको अल्लाह कुरान में कहता है सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, अगर कोई चोरी करने वाला मर्द हो, चोरी करने वाली औरत हो, अगर मर्द भी चोरी करे, औरत भी चोरी करे, इस्लाम की सज़ा यह है, शरीयत में उसकी सज़ा यही है कि उसका हाथ काट दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल के पास खबर आई कि ऐसा मामला है, कुरैश की एक औरत ने चोरी कर लिया। आपने कहा उसका हाथ काट दिया जाए। सिफारिश के लिए उसामा बिन ज़ैद आए, अल्लाह के नबी उसको छोड़ दिया जाए, बड़े ख़ानदान की औरत है, कुरैश की औरत है, इज्जत वाले ख़ानदान की औरत है, अगर उसका हाथ काट दिया जाएगा समाज में रुस्वा हो जाएगा, समाज में इंसल्ट हो जाएंगे, समाज में बदनामी हो जाएंगे, उनकी नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा, उसामा तुम किस बात को लेकर यहाँ आए हो? उसामा सुनो, पहले के लोग जो आए थे, बनी इसराइल के लोग आए थे, मूसा की कौम आई थी, ईसा की कौम आई थी, जो पहले अंबिया की कौम थी, इसीलिए वो ज़्यादातर हलाक हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये किस खानदान का आदमी है। गोया कि उन्होंने आदमी देखकर फैसला किया, गोया कि उन्होंने आदमी देखकर फैसला किया। हमारे यहाँ क्या होता है, मुजरिम हो या ना हो, आदमी देखकर यहाँ भी फैसला होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है जो ऊंचे पोस्ट पर है, हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है जो आवाज़ उठाने वाला है, हमारे यहाँ उन्हीं लोगों को मारा जाता है। मेरे भाइयों, 2023 में आपने नाम सुना होगा अतीक और अशरफ। इन लोगों को पता चला कि हाँ ये बड़े पैसा वाले हैं, ये मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाले हैं। मैं इसकी पुष्टि करता हूँ, मानता हूँ कि उनके ऊपर 100 केस पहले ही से लादे हुए, 100 मुकदमे उन पर दायर थे, लेकिन हाँ उससे भी बड़ा मुजरिम है जो इस तरह की सज़ा नहीं काटे, जिनको उम्र कैद की सज़ा नहीं दी गई और दी भी गई तो उनको छोड़ दिया गया। अतीक और अशरफ नाम का आदमी दोनों भाई थे, ये दोनों उम्र कैद की सज़ा काट ही रहे थे, जेलों की सलाखों में
जब इनके बेटे को असद को बम से उड़ा दिया गया, इनके सीधे इनकाउंटर कर दिया गया। ये अपने बेटे को दफन करने के लिए आए, अपने बेटे को सुरक्षित ज़मीन पे दफन करने के लिए आए, इनकी नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए आए। मेरे भाइयों, ये जनाजा पढ़कर दफन कफन करके ही आ ही रहे थे, ये मामला ख़त्म ही नहीं हुआ था। उनके पुलिस कस्टडी में ये है और सुरक्षा के लिए उनके साथ पुलिस भी है, लेकिन उसी जगह पे भीड़ पे कोई लिबास बदल कर, भेष बदल कर आता है और पिस्टल चलाता है, और पिस्टल चलाकर अतीक और अशरफ को मार दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, तो फ़र्क इतना यहाँ है कि मुजरिमों को ज़्यादातर नहीं, बल्कि ये देखकर मार दिया जाता है कि कौन आगे चल के आवाज़ उठाएगा, बल्कि ये देखकर मारा जाता है कि कौन हक की आवाज़ बुलंद करेगा, कौन देश में रोजगार का सवाल करेगा, देश में कौन रोजगार का सवाल करेगा, देश में कौन भाईचारे की बात करेगा, देश में कौन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करेगा, देश को जोड़ने का काम कौन करेगा। ज्यादातर इन्हीं लोगों को मारा जा रहा है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा हाल ही में मुनव्वर जमा जो मुसलमान है, मेरे भाइयों, उनकी पूरी वीडियोस खंगालिए, किसी भी वीडियोस में भड़काऊ भाषण नहीं है, किसी भी वीडियोस में न दंगे की बात है, न मुसलमान हिंदू की बात है, न मस्जिद मंदिर की बात है, न कहीं किसी वीडियो में भेदभाव की बात की गई है। लेकिन इन्होंने साजिश के तहत दूसरे को मुजरिम बनाकर, दूसरे को मुद्दा बनाकर इनको भी जेलों की सलाखों में पहुंचा दिया है। मेरे भाइयों, जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, जो हमेशा लोगों को ये कह रहे थे माँ के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए, जो हमेशा ये कहते थे कि तरक्की की बुलंदी को छूने के लिए दुनिया में तुम्हें कितनी मेहनतें करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपनी ज़मीरों को तलाश करके देखें, हम अपने गरीबानों पे झांक कर देखें कि हमारी यहाँ सूरत हाल क्या है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, उसामा, अगर तुम ये सिफारिश लेकर आए हो कि ये कुरैश की औरत है, ये बड़े खानदान की औरत है, मैं इसको छोड़ दूं, समामा तुम आए उसामा सुनो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती और पकड़ी जाती, तो अल्लाह के नबी, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट डालता, मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट डालता, इसलिए कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, शरीयत ऐसा कर रही है, शरीयत ने ऐसा कानून नाफिज किया है, हद नाफिज किया है, जिसको कुरान भी कहता है वस्सारिकु वस्सारिकतु, जिसको कुरान भी कहता है कि हाँ, अगर कोई चोरी करने वाला मर्द भी हो या औरत भी हो, फक्तौ ऐदियहुमा, तुम दोनों के हाथ काट डालो। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तअतु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं भी उसका हाथ काट डालता। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे भाइयों, हमारे इस मुल्क में 28 राज है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हर जिला के एमपी लेवल का कोई सरकार है। ये अपने दिल में हाथ रखकर फैसला करें कि अगर इनका बेटा चोरी में पकड़े जाएं, अगर इनका बेटा मुजरिम साबित हो जाए, तो क्या ये अपने बेटे को सजा देने के लिए तैयार है और इतना खतरनाक जुमला बोलने के लिए तैयार है कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे भाइयों, ये सिर्फ इस्लाम सिखाता है। चोरी करने के बारे में इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुछ भी चुराए वो चोर है। आपको मैं बता रहा हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है, भगवान श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, एक तरफ से पढ़िए, इनकी बहुत सारी लीलाएं थी। मैं ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, तौहीन नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। भगवान कृष्ण जी ये जब छोटे थे मक्खन चुराया करते थे। यशोदा मैया इनको पालती थी, इनके घर में ये मक्खन चुराया करते थे। अगर उनसे पूछा जाए तो ये यही कहेंगे कि श्री कृष्ण जी मक्खन चुराते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है, और हम भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस्लाम ये कह रहा है कि हाँ, वो चोर माना जाएगा।
تو میرے بھائیوں، شری کرشنا جی جب بالک تھے، چھوٹے تھے، تو ایسا کام کرتے تھے۔ اور چوری کا معاملہ ان کا اور یہ بھی ہے کہ جب گوپیاں سمندر میں، ندی میں، دریا میں نہا رہی ہوتی ہے، جب گوپیاں سمندر میں نہا رہی ہوتی ہے، یہ اپنے کپڑے کو اتار کر ندی کے کنارے رکھ دیا کرتی تھی۔ شری کرشنا جی آتے اور گوپیوں کے کپڑے چڑا لیتے تھے، اور کپڑے چڑا کر کسی درخت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی باغیچے میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ قدم کے پیڑ پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ گوپیاں نہا رہی ہوتی ہے، کپڑے سمندر کے کنارے رکھ دیا کرتے تھے، اور شری کرشنا جی آتے اور ان کے کپڑے چڑا کر درخت کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ گوپیاں اسنان کرنے کے بعد شری